Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Beta, please start your videos, everyone. Rishabh, Ayushi, Utkarsh, Nekarli, Aviral, Medhansh. Very good. Rishabh, beta. Fausto, Kibla. Kibla is there. Kibla. Kibla lives in Faridpur. She is not able to go to the school because the bus is not coming to take her to the school. Very Yes, sir. unfortunate. Very unfortunate for her. Her friends are going to the school daily. They are enjoying a lot and they are telling the stories of offline classes to Kibla every day. Am I right? Yes, sir. They do it intentionally to make you jealous. No, sir. No? Okay, I was just joking. Okay, everyone. We are doing the chapter linear equations. Yes, sir. है Yes, ना? sir. बेटा मेरी गंदी राइटिंग इग्नोर कर दो प्लीज. ठीक है? Linear equations In one variable. in one variable. Very nice. कितनी अच्छी बात है. So we are doing the second exercise of the chapter, exercise 7b. ठीक है? Let's start with question number. हम लोग बेटा कहाँ तक कर चुके थे? 27 तक कर लिया था. कहाँ तक कर लिया था? We have done question 24. 25 is also done. 26 करना है. ठीक है Yes, बेटा? sir. Question 26. Everyone ready? Please keep your videos on. बेटा ऑन रखा करो बच्चे. अच्छा लगता है मुझे. उत्कर्ष तुम बार बार ऑन करके ऑफ कर देते हो. ऐसा क्यों करते हो? ऑन रखो. अविरल भारद्वाज, किबला, अभिषेक सिंह. Abhishek Singh, today you are Sir, attending. my camera is open. Okay, beta. Okay. Abhishek, today you are Yes, attending online. yes sir. आज स्कूल क्यों नहीं गए बेटा? सर मन नहीं कर रहा था अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा. वीडियो सर। ऑन आज कर लो आपकी बेटा. क्लास वीडियो ऑन कर लो बेटा. अभिषेक, कौस्तुभ, वीडियो ऑन करो. सर Question number 6. Okay. A man sold an article for rupees 495 and gained 10% on it. अच्छा, बहुत अच्छी बात Sir, है. you have फाइंड द. written question 6. अरे 26 हो जाता है बेटा बुढ़ापे में कभी कभी ऐसा ना कि इंसान का दिमाग नहीं चलता है. थोड़ी सी शादी के बाद ऐसे हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 26. Okay, so yeah, a man sold an article for rupees 495. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. 10% का प्रॉफिट हुआ था उसे और प्रॉफिट होने के बाद 495 का उसने सेल कर दिया. सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स. वही निकालनी है हमें. लेट द सीपी बी एक्स. तो ये क्वेश्चन हम वैसे तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले वगैरह यूज करके भी कर सकते हैं, बट वी विल यूज a logic of linear equations to find the answer. So let the cost price be x.
ठीक है, मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स था, अब उसने 10% का गेन हुआ है इसमें, तो एक्स प्लस इसमें 10% और ऐड कर दो, ये प्रॉफिट हुआ उसको, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये था प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा विच इज ऑलरेडी गिविंग 495। ओके, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, सो दिस मेक्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं इस चीज को, डायरेक्टली हम लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके भी निकाल सकते हैं। ओके, so x plus 10% of x equals to 495, this is the equation. Now let's solve the equation, 10 upon 100 into x, ये 10 कट गया, 495, so x plus x upon 10 equals to 495। यहाँ बेटा डिनोमिनेटर 1, 10 is the LCM, 10x plus x equals to 495। समझ में आ रहा है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। 11x Yes, sir. upon 10 equals to 495, so x equals to 495 into 10 upon 11, 11 से इसको कट कर लो, 45, 45 into 10 450। so what is the CP, the CP is rupees 450, this is the cost price। clear? Sir, please scroll up. Yes, any doubt in the question? No, sir. उत्कर्ष बेटा गुड मॉर्निंग। Yes, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. क्वेश्चन 27 करें? अच्छा नोट कर लो, चलो पहले नोट कर Sir, लो। written. Done. Yes. Okay. Question number 27. The length of a rectangular field is twice its breadth. एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, तो अगर हम ब्रेथ x मान लेते हैं तो लेंथ कितनी रहेगी? लेंथ ब्रेथ की डबल है, तो इफ द ब्रेथ इज x देन व्हाट विल बी द लेंथ? 2x. 2x, very nice, so let the breadth be x, let the breadth of the rectangle be x, so length is equal to 2x। ठीक है, ये हो गई 2x। नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसका पेरीमीटर 150 मीटर्स आपको गिवन है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, पेरीमीटर हमको गिवन है कितना 150 मीटर्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको बचपन से पता है, कितना है 2l प्लस बी, है ना। लेट्स पुट l की जगह 2x एंड b की जगह x, 150, सो 2 इंटू 2x प्लस x, ये बन गया 3x, 2 इंटू 3x 6x। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। 150 अपॉन 6 कितना आया बेटा? ट्वेंटी 25 मीटर्स। ये x आ गई, x क्या है? ब्रेथ है,
लेंथ निकाल लो बेटा. Length is equal to 2x, therefore 50 meters. Any doubt in the question? No, sir. No, sir. No, sir. Question? Okay, very nice. Sir, written. Done, all of you. Let's start with question 28. Ready? Yes, sir. Sir, please wait. Yes, sir. Okay, beta. Okay, okay. Sir, done. बेटा शुरू करें अब 28. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. हमारे बीच में एक लड़का बैठा है, सात्विक नाम है उसका. बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत चालाक लड़का है. बस एक बात उसकी खराब है कि क्लास में ज्वाइन करके गायब हो जाता है. क्वेश्चन 28. प्रेजेंट है लेकिन फिर भी प्रेजेंट नहीं. Sir, who? उस बच्चे का नाम है सात्विक गुप्ता. क्वेश्चन 28. एक लड़की है सौम्या कपूर, उसका नाम है सौम्या कपूर. वो हमेशा प्रेजेंट रहती है और जब तक ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी सौम्या कपूर ऑनलाइन ही अटेंड करेगी. एम आई राइट सौम्या? Yes, sir. Maybe, sir, I will be there in December. You will be coming offline in December? Sir, maybe. Maybe, Sir, not not sure. confirmed. अच्छा, how many of you are thinking कि जब तक Sir, I ऑनलाइन will come. you will also come offline? So how many of you are Yes, sir. thinking कि जब तक ऑनलाइन चलेगा तब तक ऑनलाइन ही आएंगे? Raise your hand. Zoom में हैंड रेज करो जरा. Zoom ऐप का यूज करो. रेज योर हैंड. जब तक ऑफलाइन चलेगा तब तक ऑफलाइन ही आएंगे. वो सॉरी, ऑनलाइन चलेगा तब तक ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे हम लोग. अच्छा, 1 2 3 4. आशिका यादव इज ऑल्सो देयर. 5 मेघांश एंड अविरल, आयुषी. सात्विक बेचारा नाराज होके चला गया. ठीक है बेटा, पुट योर हैंड्स डाउन. Sir. Sir. यस बेटा. सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप? इसके बाद अभी बेटा वैसे तो सोचा नहीं है.
देखते हैं. Okay, all of you, let us start the next question. I am going to explain the question to everyone. Two equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side. एक सेकंड बेटा होल्ड करो. हाँ जी बेटा, 28th question. Two equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice the third side. Okay, if the perimeter of the triangle is 55. तो बेटा सबसे पहले all of you, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ. You all will solve the question yourself. Let the third side be x. ठीक है, नोट कर लेना, थर्ड साइड x. Now बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और वो कितनी है ध्यान से सुनिए. 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड. थर्ड साइड का डबल करो पहले, 2x हो गया, उसमें 5 माइनस कर दो, सो 2x माइनस 5 हो गया. तो दैट मीन्स थर्ड साइड x और फर्स्ट सो फर्स्ट एंड सेकेंड साइड 2x माइनस 5. ठीक है, थर्ड साइड को x लगाइए, फर्स्ट और सेकेंड साइड को 2x माइनस 5 लगाइए. पेरीमीटर इज गिवन 55. पेरीमीटर इज 55. तीनों साइड्स को ऐड करो, पेरीमीटर के इक्वल लगा दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, you all are doing the question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good बेटा, करो. सर Yes. सर आपके घर पे क्या डॉगी है? Sir is not having dog.
हाँ जी बेटा। सात्विक बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सात्विक, चलो एवरीवन डन हो गया? The equation will be this. I'm writing it on the board. 2x minus 5 first side, second side again 2x minus 5, थर्ड साइड x, तीनों साइड्स का सम 55, पेरीमीटर आपको 55 गिवन है, राइट? सॉल्व कर ली? 2x minus 5 plus 2x minus 5 Yes, sir. plus x equals to, what is the value of x? Sir, 13. कमाल कर दिया, बिल्कुल सही है। 5x equals to -10 RHS में जाके ऐड हो गया, 65 हो गया। x equals to 65 upon 5, x equals to 13 मीटर। ये थर्ड साइड मिल गई आपको पहले, ठीक Yes, है? sir. फिर फर्स्ट और सेकंड भी निकाल लीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आएंगी, कितनी? 2x minus 5 यानी कि 13 into 2, 26 minus 5, 21 मीटर की आएंगी दोनों। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, वो मेरा डॉगी नहीं था, वो मेरा खुद का ही बच्चा था, आवाज निकाल Yes. रहा था, मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा था। ही वॉज देयर इन द रूम, शैतानी करता है बहुत, तो वही आवाजें निकाल रहा था, मैं उसको चुप करा रहा था, लेकिन चुप नहीं हो रहा था, मैंने उसे भगा दिया यहाँ से। थोड़ा बदमाश टाइप का है, बिल्कुल भी मेरे ऊपर नहीं गया है। मैं ठहरा एकदम सीधा साधा आदमी, आप लोग जानते ही हैं। चलो क्वेश्चन 29। मैं कभी अपनी खुद की तारीफ कभी अपने मुंह से करता नहीं हूँ। चलिए क्वेश्चन 29, क्या ही बताऊंगा तुमको। Sir, I know. यस यस यस, कभी आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि मैंने अपनी तारीफ करी हो। कभी आज तक मैंने नहीं कहा कि मैं इतना इंटेलिजेंट, इतना हार्ड वर्किंग टीचर हूँ। कभी कही मैंने, बताइए, कभी नहीं कही होगी। नो सर। Question 29, two complementary angles differ by 8 degrees. Okay, find the angles. Complementary angles का difference 8 है. So let the angles be x and x minus 8. जो बड़ा वाला एंगल है उसे x मान लीजिए, छोटे वाले को x minus 8 मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो अगर बड़ा वाला x है तो छोटा वाला x minus 8 हो जाएगा, है ना? अब दोनों एंगल्स यहाँ पे साफ साफ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। नहीं पता? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज होता है आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो x प्लस Okay, x, sir. 2x minus 8 equals to 90, 2x equals to 98, x equals to 98 upon 2, x equals to 49। बड़ा एंगल आ गया 49 डिग्री, फर्स्ट एंगल। ठीक है बेटा, मैं गंदी राइटिंग ले रहा हूँ, आप लोग अच्छी राइटिंग लेना। सेकेंड एंगल इक्वल्स टू x minus 8 यानी कि 41 डिग्री। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना बेटा? आई थिंक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था चैप्टर का। Yes, sir. Sir, done. x minus 8। सप्लीमेंट्री में क्या होता है बेटा? सम क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स सप्लीमेंट्री के केस में? सर 180।
180 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सेम इसी तरीके से शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सम क्या लगाएंगे दोनों का, 180 डिग्री, 90 की जगह 180 कर देंगे बस। रीड द क्वेश्चन, डू इट Okay, sir. केयरफुली, फॉर्म द इक्वेशन और सॉल्व करके बताइए आंसर। Sir, done. Very good. All of you, please send your answer in the chat box. Everyone will Sir, send I their am answer in doing. the chat box. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कर कंप्लीट कर लो, उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर देना। Abhishek Singh and Kaustubh have sent the answer in the chat box. बाकी बच्चे करेक्ट आंसर्स, बोथ ऑफ यू, दोनों का आंसर सही है। वेरी नाइस। रेस्ट ऑफ यू
सेंड द आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे यार। Kibla has also sent the answer. Very nice. Kibla's answer is also correct. बेटा still only 3 students have sent. बाकी बच्चे को आंसर नहीं आया आप Sir, लोगों I का। have also sent. Yes बेटा, Kibla, I have seen your answer. Very good. Correct. चलो we will not discuss the question because I feel कि इससे easy question तो हो ही नहीं सकता। Sir, ना। it's just same like 29. Question 29. Question 31. In an isosceles triangle, the base angles are equal and the vertex angle is twice of each of the base angles. आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। Sir. Question 31. So let the base angles be x each. Let the two base angles be x each. दो बेस एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड वर्टेक्स एंगल यहाँ पे जो है इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस एंगल। तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा? ट्वाइस, यानी कि 2x। वर्टेक्स एंगल हो गया 2x। ओके, अब हमको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? What Sir, is the sum 180. of all the three angles? It is always 180 degrees. ये हमको पहले से पता होना चाहिए। So ये हो गया 4x equals to 180, x equals to 45 डिग्री। तीनों एंगल की वैल्यू लिख दीजिए निकाल के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए तीनों एंगल, तीनों पता है हमको। 2x है यानी कि 45, 45 दोनों। ये भी x है, ये भी 45 हो गया। वर्टेक्स एंगल थर्ड वाला 2x यानी कि 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? We have done till question number 31. Rest of the questions we will be doing tomorrow. Okay. Thank you, all of you. Bye. Bye, sir. Have Bye a bye. nice day. Thank you. Same to you.